Okay, so now again we are seeing this nutshell digestive system, alimentary canal in total. So here you can very clearly see the mouth and oral cavity, the pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, glands इस तरफ दिया हुआ है. तो on the left side आपको दिया गया है alimentary canal, on the right side आपको दिया गया है glands. ठीक है? So now we will go into our next drawing and we will discuss about the variations in this. Okay? तो ये जो हमारा variation है इसके बारे में थोड़ा बातचीत हम करें. Now if you are seeing here, so here on the right side we are discussing the alimentary canal of two types of animals. This is already a question of NSE. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये आपको दो तरह का एलिमेंट्री कैनाल दिया गया है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स व्हिच इज ऑलरेडी गिवन. बस आर क्लास 10 क्लास 7. सो यहाँ आप देख रहे हो, ये जो है इसमें लॉन्गर इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये लॉन्गर इंटेस्टाइन है. एंड यहाँ आप देख रहे हो स्मॉलर इंटेस्टाइन. ओके, आप देख रहे हो कि नहीं इन द डायग्राम? सो हियर यू सी द वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज लॉन्गर. आप लार्ज बोल सकते हो, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, हम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं. तो व्हाई दे हैव लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन एंड सीकम आल्सो? सीकम होगा, कभी कभी अपेंडिक्स होगा, ये सब बड़ा होता है. दिस इज टू एड. ओके, दिस इज बिकॉज in herbivores, Cellulose digestion. yes, they harbor symbiotic cellulose digesting bacteria in their intestine. समझ रहे हो? तो since they store cellulose digesting bacteria, the longer the intestine, the better it is. Okay, so one thing we can conclude from this diagram is this figure belongs to what? So this figure belongs to herbivores and this figure belongs to carnivores. Understood? इसीलिए carnivores are very small intestine. So suppose you people are keeping dogs. So as soon as you have fed them, in some time they will give a signal for going to latrine. So please take them out. Your job is done. Why? Because नूतनम प्रविश्यति पुराणम बहिर्गति. तो जैसे नया माल अंदर घुसेगा, वो पुराना माल को धकेलेगा बाहर निकल. Understood? So that is the concept. So how to know which is what? So you will see the what? Intestine. So those animals which have longer intestine, that diagram is of the what? Herbivores. And those diagrams which will have smaller intestine, they are called the carnivores. Any doubt? This has already come in INBO, NSCB, all type of papers. This has already come. So now in the left hand side diagram, we are seeing the entire process of digestive system. You see how beautiful diagram this is. You can never see these diagrams in your college. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें. तो जैसे फूड आया इनटू द स्टमक, वहाँ एसिड सिक्रेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, स्टमक मोटिलिटी हुआ, and etc 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 etc. So this you will not discuss in class 10 because you are children, you want to read inside. Hello. Now, so this is called the complex stomach of what? This is called the complex stomach of the herbivores. ठीक है?
So in herbivores, there are two types. Number one, ruminants. So they have complex stomach having 2 to 4 chambers. Okay, rumen and reticulum harbor क्या symbiotic cellulose digesting bacteria. Okay, so they digest symbiotic cellulose digesting bacteria. Understood? So this is the concept of ruminants. Okay, so they have 4 chambers. So what are the 4 chambers? Number one is called rumen. इसको पॉश कहते हैं, कॉमन नेम. Number two is reticulum, which is also called honeycomb. Number three is omasum. इसका कॉमन नेम है सॉल्टेरियम. ये जनरली थोड़ा सा वाटर रिटेन करता है. एंड तापरे नंबर 4 is abomasum, which is also called true stomach. Why it is called true stomach? Point number one, secretes HCl. Point number two, secretes enzymes that will digest proteins. And point number three, close to small intestine. Understood? So this is the concept of the what? Your herbivore stomach. Now what happens in herbivores? Now in herbivores what happens? So those animals, they don't go to eat, they go to char. वो चरने जाते हैं. Char means that is called what? Grazing. Okay. So now cow, let us take an example. Cow goes to graze grass. एक्चुअली क्या होता है, उनको टेंशन होता है कि मेरे पहले सारे खा जाएंगे, इसलिए समय दे ईट फास्ट एंड swallow it. So what is grazing? Chew and swallow. Bas, nothing else. Chew and swallow, chew and swallow, chew and swallow, chew and swallow. Okay. Now food goes to rumen and reticulum, where they are acted upon by cellulase enzyme from, yeah, so they are acted upon by cellulase enzyme from the intestinal bacteria. Like, उसमें एक खूबसूरत एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, रूमेनोकोकस. ओके, तो रूमेन में रहने वाला कोकस बैक्टीरिया, रूमेनोकोकस. ठीक है जी. नाउ दे ब्रेक beta 1 to 4 glycosidic bonds. Okay, they break beta 1 to 4 glycosidic bonds found in cellulose.
अब प्लीज ध्यान दीजिए, एनिमल्स लैक बीटा अमाइलेजेस, समझ रहे हो? दे हैव व्हाट? अल्फा अमाइलेजेस। तो जो एनिमल्स हैं, वी कैन नॉट, एनी एनिमल, वी कैन नॉट डाइजेस्ट बीटा बॉन्ड, सो दैट इज वाई, तो हमारे जो एंजाइम्स है, वी हैव अल्फा अमाइलेज, मींस वी कैन डाइजेस्ट अल्फा बॉन्ड्स, so we cannot digest beta bonds. So that is why what will happen, so you need to have somebody to help in this digestion. So you have to give them place to live. So somebody has given them place in the stomach and somebody has given them place in the intestine. Okay, आगे समझ? Now अब वो घर वापिस आते हैं. When cow returns home and resting, एक हिचकी आती है. Resting, it draws the cud. So what is cud? Partially digested food ball from stomach. ठीक है, तो वो उसको बुलाएंगे. Understand? So this is called reverse peristalsis. Okay, it draws the cud by reverse peristalsis. Okay, so this is also called what? This is also called regurgitation. Okay, now अब वो क्या करते हैं? They chew cud and digest food with the help of HCl and enzymes in abomasum. तो उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो food, where the food will go? Now food is then transferred to small intestine. कोई डाउट से पूछो इसमें? ये सिर्फ रूमिनेंट्स में होता है. ओके, नॉट द अदर टाइप ऑफ हर्बीवोर्स. इज इट ओके? Yes, sir. चलो, अब केस बी, इन रैबिट्स एंड अदर रोडेंट्स क्या होता है? दे हैव सिंपल स्टमक. ओके, दे हैव सिंपल स्टमक, माने एक ही चैम्बर है. सो they shelter symbiotic organisms in their कहाँ? Large intestine. Okay, in their large intestine. It may be cecum or colon or appendix. Okay, तो ये वहां शेयर करते हैं. So food is digested
कौन सा फूड? सेल्यूलोज इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. ना ये आपका रैबिट है. तो रैबिट अपना लैट्रिन को देख के इतना खुश क्यों होता है कि उसको मजा आने लगता है? तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस हियर. ओके. सो इसीलिए actually as we had discussed just before some time that food digested in large intestine is not absorbed. Okay, is not absorbed. क्यों? Because आपका absorption का last part क्या है? Small intestine. तो उसके बाद आपका और फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा. Understood? अब the rabbit has two options. Okay? Rabbit, ये क्वेश्चन मार्क क्यों है उसके दिमाग में? वो करे क्या बेचारा? इधर हरी हरी घास है, उधर ब्राउन ब्राउन झाड़ा है, लैट्रिन. तो वो किसको खाए? ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी. पुलकित, आप रैबिट होते तो क्या खाते? सर बी. आप घास खाते तो क्या होता आगे? तो घास कहाँ हजम होगा? लार्ज इंटेस्टाइन. आज इंटेस्टाइन. फिर हक दोगे. अब फिर तुम्हारे पास यही सिचुएशन आ जाएगा कि घास खाएं या लैट्रिन. तो क्या खाओगे? एंड अगर आप फिर घास खाए तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा? अब ये जो मोटा सा है अब ये ऐसे हो जाएगा, पतला सा रैबिट हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो नाउ यू विल बिकम स्किनी रैबिट. तो इसीलिए समझ में आया? Therefore, rabbits eat their own fecal matter because it is rich in क्या? Partially digested cellulose, which will give energy if eaten now. Okay? If it eats grass, again no energy because it will be digested in large intestine. है ना? आ गया मजा? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सूडो रूमिनेशन. ओके? या इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? कॉप्रोफेजी. वो जो अपना लैट्रिन खा रहा है उसको कॉप्रोफेजी कहा है. क्यों खा रहा है? दैट इज कॉल्ड सूडोरूमिनेशन. क्योंकि उसका रूमेन है नहीं, तो उसका जो सिम्बायोसिस होगा वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में है, इसलिए वो आपको खाना में मदद नहीं देगा. इसीलिए इनके पास ये बोले बोले. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट व्हाई रैबिट ईट्स इट्स ओन स्टूल. यस. चलो. सो
This is the unique part of the digestion in case of herbivores, because a lot of people are telling us to become vegetarian. तो अगर आप भी वेजिटेरियन बनोगे तो कुछ ऐसा ही हाल होगा, है कि नहीं? चलिए, so the next जो हमारा heading है, so the next heading is our what? So the next heading that we will discuss is mouth and buccal cavity. Okay, so this is the mouth and buccal cavity. Fine. अब हम लोग एक सुंदर सा ड्राइंग बनाएंगे. Fine. So what is this? This is the side view of a face. Fine. Now अब हम इस फेस का गाल उखाड़ देंगे. तो आप क्या देखोगे? ये अपर जॉ है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये लोअर जॉ है, ये टंग है, ये एपिग्लॉटिस है. अंडरस्टूड? एंड यहाँ आपको दो ट्यूब्स मिलेंगे, एक है ट्रैकिया एंड एक है फूड पाइप. अंडरस्टैंड? ये ऊपर नेजल कॉन के हैं, उसका हमारा इस चैप्टर से कोई रिश्ता नहीं है. यहाँ दो ठो नॉस्ट्रिल्स है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. ठीक है? एंड ये जो जगह है ये आपका बकल कैविटी है. चलिए, सो नाउ इफ यू हैव ड्रॉन इट, विल लेवल द डायग्राम. सो ये जो है आपका, सो दिस इज योर व्हाट? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. ये है आपका नेजल चैम्बर. ये हमको जरूरत नहीं है अभी, इसलिए हम अलग कलर से बना रहे हैं. दिस इज योर olfactory chamber, but ये हमको जरूरत है. So this is called nasopharynx. Okay, pharynx is common opening between food and your air. तो ये जो माउथ के सामने वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? ओरोफैरिंक्स. ओके, एंड जो थ्रोट के पास वाला है, दैट इज कॉल्ड लैरिंगोफैरिंक्स. ओके, सो ये जो है, दिस इज अपर लिप्स, लोअर लिप्स. Okay, this part. Okay, this is upper lips, lower lips. Now ये जो गैप है बीच में, this तो क्लियर कर देते हैं. फाइन. सो ये लिप्स है एक्चुअली. सो ये जो गैप है, दिस gap is called oral vestibule. Okay, this gap is called oral vestibule. उसके बाद ये जो दांत है, this is called upper jaw. ये जो पार्ट है, this is called upper heart. पहले ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं अपर सॉफ्ट पैलेट. ये जो छोटी छोटी छेद हैं, इसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, which is closed by this fold of skin. This is called uvula. Okay, uvula. Now ये जो है, ये आपका बकल कैविटी है. This is the tongue.
Okay, this is the lower jaw. Now ये जो है ये है epiglottis. So this is called trachea. This is called food pipe, also called esophagus, also called windpipe. Fine. Now ये जो windpipe है उसके ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लॉटिस, एंड जो फूड पाइप के ओपनिंग को हम कहते हैं गलेट. अंडरस्टूड? तो जब आप खाना खाते हो ये नेचुरली ग्लॉटिस के अंदर जाने को रहता है, तो इसलिए एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसके ऊपर ढक्कन जैसा गिर जाएगा. तो इसलिए जब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा तो नेचुरली आपका फूड कहाँ जाएगा, इट विल गो इनटू द esophagus. Okay, so this is the drawing, that is your what, mouth and buccal cavity. Understood? Now अगर इसमें से हम लेवलिंग को हटाएं तो ये आपका आर्किटेक्चर हो गया. सिमिलरली हम एक और ड्राइंग बना सकते हैं. ओके, अगेन ये अपर जॉ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट अब्यूला, लोअर जॉ, टंग, एपिग्लॉटिस. फाइन. अब हम यहाँ ग्लैंड बनाएंगे. ग्लैंड. तो अब इधर आप देखोगे तो कान के पास एक बहुत बड़ा पेयर ऑफ ग्लैंड होता है. उसी तरह जॉ के एज में एक ग्लैंड होता है, एंड जीभ के नीचे एक पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड. नाउ ये जो जॉ के ऊपर वाला ग्लैंड है ये आपके सेकेंड मोलर के पास खुलता है. ओके, उसी तरह जो ये ग्लैंड है ये आपका लोअर लैटरल इंसिजर्स के पास खुलता है, एंड ये टंग के नीचे खुलते हैं. और क्या, अंडरस्टूड? सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, एंड उसके डक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस डक्ट इज कॉल्ड वार्टन्स डक्ट. सॉरी, उसको कहते हैं स्टेनसेंस डक्ट. ओके, स्टेनसेंस डक्ट. जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, दिस इज सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, और इसको हम सब मैंडिब्यूलर सैलिवरी ग्लैंड भी बोल सकते. Why it is present at the junction of maxilla and mandible. तो उसका जो डक्ट है इस डक्ट को बोला जाता है क्या, वार्टन्स डक्ट. दिस इज कॉल्ड वार्टन्स डक्ट, जो कि लोअर लैटरल इंसिजर में खोलता है. अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स हैं. तो दिस छोटे छोटे डक्ट्स they are called Rivenian ducts or ducts of Rivenus. ओके, सो ये हमारे तीन हो गए क्या, सैलिवरी ग्लैंड. अंडरस्टूड? नाउ ऑल ऑफ देम आर ओपनिंग इनटू द बकल कैविटी, एंड ये क्या ढालेंगे उसमें, so the fluid that they release into the mouth is called saliva. ठीक है? So that's all for today. You can discuss. अभी कट ही जाएगा कुछ देर में, तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, otherwise we'll end our meeting. Ask anything you want to ask, doubts?
इतना सब पढ़ लिए, ऐसे आलन में इतना पढ़ा रहे हैं ना, ज्यादा पढ़ा रहे हैं आलन आकाश में? सर योग सेक एंडोडर्म क्या होता है? वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए 12th क्लास पढ़ना। एक्चुअली हमारा एक फीटल लेयर है, फीटल मेम्ब्रेन, बच्चे का एक पैकेट होता है, उसको योग सैक एंडोडर्म बोलते हैं। तो वहां से आपका एंडोडर्मल सेल्स का जन्म होता है। एटा हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़े लड़को। और बोलो, ओके सर। अदर डाउट्स? ओके, सो आई एंड द मीटिंग टुडे। सो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो वी विल go into details of the hormone enzyme and etc. Okay.